हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपसे डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में। हम एज ए फर्स्ट टॉपिक इनडायरेक्ट टेक कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। एज ए सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से हम इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पर ले रहे हैं और वह नेक्स्ट टॉपिक होगा चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। वे वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से वर्ड्स में चेंज करते हैं। जैसे आप यहां पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यू आर वॉचिंग एयर ऑन द बोर्ड, यू आर नोटिसिंग एयर ऑन द बोर्ड दैट इफ इन डायरेक्ट स्पीच these words have been given, so at the time of change direct sentences into indirect sentences we will use these words. You can understand if in direct sentence, direct speech, here the word now has been given, then we should use here on the place of it. In indirect speech, then, then, then. On the place of this, that. On the place of these, those. On the place of ago, ago, before. On the place of thus, so. Last day or last year, we should change into the previous day or previous year. Next year, the following year we should do. The day after tomorrow, we should change into indirect speech 2 days later. And on the place of today we should use that day. If tomorrow has been given, then we should use the next day or the following day or the day after. If yesterday has been given in direct speech, then indirect speech, yesterday, on the place of yesterday we should do the previous day or the day before. If last night word has been given in direct speech, then we should use on the place of it the following week. A year ago, we should use on the place of it a year ago means a year before or the previous year. The day before yesterday has been given, so we should use on the place of it 2 days before or 2 days earlier. Come, on the place of come we should use go. On the place of last word we should use the previous. On the place of next we should use the following. तो दोस्तों, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हुए हमें इन वर्ड्स में चेंज कर देना चाहिए। कल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरह से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। देखिए, प्रोनाउंस को मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताया था SON, इट मीन्स सन अपॉन 123। यहाँ पर आप प्रोनाउन में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इफ थर्ड पर्सन हैज बीन गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, देन नो चेंज। तो दीज आर द चेंजेस ऑफ
pronouns in indirect speech, and these are the changes of the words expressing nearness at the time of converting direct speech into indirect speech. Now we should change here, and we should understand with the help of example to it. You can take a screenshot of it if you want, students. I am going to rough it and I am going to tell you about the change of these words in the form of example. We should do this. Okay, I am going to change it. With the help of example we should do. Yes. Example, Ashok said to me, Ashok said to me, Ashok said to me, I am reading a book today. It is reporting verb and it is reported speech. In this, we should understand the rules which we have done in previous classes. We should understand, we should see that first of all, Ashok told me conjunction that should be used. I is the first person, according to it we should change Ashok. I first person है, Ashok के according change होगा he. On the place of am reading present continuous tense, we should change it in past continuous tense. Was reading a book today. On the place of today, today is showing near, it means day. We should change it that day. That day. So here on the place of today we have done that day. यहाँ पर हमने that day यूज किया, हमें समझना है, ठीक है. Nearness यहाँ पर on the place of today we have used here that day. One more example. The teacher said to the students, comma inverted commas begin, I will not teach you tomorrow. I will not teach you tomorrow. देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि tomorrow word has been used. Tomorrow word is used here. We should change it. So we should understand in which word we should change. Tomorrow word we should change. We can change here the next day, the following day, the day after. हम यहाँ पर tomorrow को the following day में भी change कर सकते हैं, द डे आफ्टर में भी चेंज कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं. एक चीज और मैं आपको यहाँ ध्यान से सुनना, मैं एक चीज और बता दूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होगा, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार हम यहाँ पर
रिपोर्टिंग वर्ब के said to को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंस डिफरेंट होगा तो ये कंपल्सन नहीं है कि हम यहाँ पर इसमें said to के प्लेस पर टोल्ड ही करेंगे। हम यहाँ पर said to के प्लेस पर डिफरेंट वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेड, एडमिटेड, आंसर्ड, इस तरह के हम वर्ड्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक्सेप्टेड भी कर सकते हैं, आंसर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एडमिटेड भी कर सकते हैं, कन्फेस्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिनाइड भी कर सकते हैं। अगर डिनाइड का सेंस आ रहा है तो इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, रिप्लाइड भी कर सकते हैं, प्रोमिस्ड, कंप्लेंट, थॉट्स एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर किस तरह से हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना सकते हैं, देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई विल नॉट टीच यू टुमारो। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that I first person change according to the teacher, तो he, past tense of will, would not teach, you is second person and objective case, change according to the object of the reporting verb. Reporting verb object is the students. The students is plural, so we should use here them. Them. Now change the word tomorrow. Tomorrow into the next day. The next day. On the place of tomorrow, what we have used? The next day. The next day, the following day, the day after, we can use here. Clear? In this way, nearness words are changed. We should pay attention towards it. But we should understand that if the sense of reported speech is different, so we can change reporting verb said to into डिफरेंट वर्ड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक्सेप्टेड, एडमिटेड, आपको मैंने बताया आंसर्ड, कन्फेस्ड, डिनाइड, इन्फॉर्म्ड। अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस और भी अधिक अच्छा और इंप्रेसिव होता है। इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना है, यदि हमारा सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में यूज किया गया है तो हमें उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वह एक यूनिवर्सल सेंस के रूप में यूज किया जाना चाहिए। जैसे ए हर्मिट सेड, वी शुड राइट ऑन द बोर्ड, वी कैन अंडरस्टैंड इट। Yes. Yes, we can use here. Next, you can see here the sentence, the hermit said we are the children of God. The hermit said we are the चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब आप यहां पर देख रहे हैं, इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे
कि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है वी कैसे यूज किया गया है? यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है वी, फर्स्ट पर्सन, और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये बात बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज वी। ठीक है, हम यहाँ पर वी को चेंज नहीं करेंगे, सीधा हम इसको एज इट इज राइट कर देंगे। जैसे द हर्मिट सेड दैट वी, अक्सर हम क्या कर देते हैं? दे किसके लिए करेंगे? अरे भाई हम सभी, इसका मतलब यूनिवर्सलिटी के लिए यूज किया गया है, वे थोड़ी, हम भी तो हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। We should not change it if it has been used as a universality. अगर एज ए यूनिवर्सलिटी के साथ यूज किया गया है तो हमें उसमें चेंज करना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम नियरनेस को और इस तरह के यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो जाते हैं, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ये पता नहीं लगता है कि हमने ये जो चेंज किया है ये सब्जेक्ट के लिए किया है या ऑब्जेक्ट के लिए किया है। तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? हमें रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन हम चेंज करते हैं ब्रैकेट में उस पर्सन का नाम लिख लेना चाहिए जिस पर्सन के बारे में हम वो इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? एक होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच में भी इन्वॉल्व है, इस केस में हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय उस वोकेटिव केस को, उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस, उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए, फादर सेड रोहन you should do this work। अब यहां पर रोहन इस रिपोर्टिंग वर्ब में तो नहीं है, लेकिन रोहन का यूज यहां पर किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में एज ए वोकेटिव केस यूज किया गया है, क्योंकि जो स्पीकर है वो किससे बोल रहा है? रोहन से बोल रहा है। ये वोकेटिव केस लास्ट में भी आ जाता है कॉमा लगने के बाद। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर टोल्ड, आस्क्ड भी हम कर सकते हैं, टोल्ड रोहन दैट। अब यू को हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रोहन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही शुड डू। अब दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट वर्क। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। यहां हमें एक बात बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि वह वर्ड जो नियरनेस को शो कर रहा है और वो चीज हमारे पास है, करीब में है, जिसको वो इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसी दशा में इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिस है, दिस वर्क अगर वो वहीं पर एट प्रेजेंट रोहन खड़ा हुआ है जहां पर उसे कहा जा रहा है कि ये कार्य सामने दिखाई पड़ रहा है, ये कार्य है, तो फिर हम उसमें दिस को दैट नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इस केस में हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि
जो भी वर्क है या जो वस्तु है वो हमारे पास है, हमारे करीब है, हमें उसमें कोई चेंज करना नहीं चाहिए। यदि सेंटेंस में इफ या अनलेस या व्हेन का यूज हुआ होता है, हम अगर उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम सेंटेंस में इफ वाली क्लॉज दो तरह से बना सकते हैं। इफ वाली क्लॉज को इनडायरेक्ट बनाते समय थोड़ा लास्ट में ले जा सकते हैं, उससे पहले हम इफ के बाद जो रिजल्ट वाली क्लॉज होती है उस क्लॉज को सामने ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल यहां पर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। एग्जाम्पल आप देखिए, द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, when the cat is away, the mice would play. The mice would play. अब ये सेंटेंस है, इसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, हमें यहां पर देखना है कि इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करें। देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से? दो तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आप यहां पर देखिए फर्स्ट टाइप है इसको, द ओल्ड मैन यहां पर द ओल्ड मैन, सैड को सैड भी रहने देंगे या टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द ओल्ड मैन सैड व्हेन, यहां पर कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे। व्हेन द कैट, अब बताइए इसको इज अवे को हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। क्योंकि प्रेजेंट है और यहां पर ये पास्ट है तो इसको चेंज करेंगे। वॉज अवे, कॉमा द माइस वुड प्ले। क्लियर? यहां पर हमने दैट का यूज नहीं किया है, लेकिन हम इसको सेकंड टाइप कैसे बना सकते हैं? द ओल्ड मैन said the old man said that, यहां पर that का यूज करेंगे और जो ये वाली क्लॉज है इसको हम शुरू में ले आएंगे, ठीक है। The old man said that the mice would प्ले, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड वाली फर्स्ट वाली क्लॉज थी व्हेन वाली, ये इसको हम यहां पर ले आएंगे। व्हेन द कैट वॉज अवे, इस तरह से हम इफ या अनलेस वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, ठीक है। हम सेकंड टाइप अगर सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सेकंड टाइप सेंटेंस हमारा अच्छा होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए हमें यहां पर सेकंड टाइप में ज्यादा चेंज करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। और आज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, मैं आज आपसे असर्टिव सेंटेंसेस के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ये जो रूल्स असर्टिव सेंटेंसेस के होते हैं, दीज रूल्स आर यूज इन एवरी काइंड ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। Only reporting verb is changed and only some common rules are changed, but mostly these rules are used in every kind of indirect sentences. I hope that you have understood properly to it, and you will like, you will subscribe, and you should take more and more enjoyment of the classes, and you can understand properly. Thank you, students. Thank you. Have a nice day.